So good afternoon everyone. Welcome to Sleepy Radiology classes, and this class is today for everyone, not only for my radiographers and radiological department staffs. This presentation and this video is going to help you in lot about our department and various sciences also of the department. So today we are with a new topic in sleepy radiology, and that is radiation sign and symptoms. So talking about the radiation sign and symptoms, what is actually the radiation symbol is given by international body, and it is also known as a trefoil sign because it is having three foil like fan blade, and this was first brought in 1946 at University of California in Berkeley Radiation Laboratory. So when the symbol was introduced, it was like it was having a magenta with a blue background. I'll show you later. And now we are using either magenta or black color with a yellow background. So this symbol is very much important. Means whenever you are seeing this kind of symbols, you can have a rough assumption that this area is having radiation. So you have to be precaution regarding that. And we will describe about various departments and what are the symbols we use in various areas of our department. Coming to so you can see this is the fan blade trefoil sign of radiation, and this is also known as an hazardous sign of ionizing radiation too. So in 1946 we were using magenta with a blue background. USS peoples are using now, yeah, yellow with magenta background, and all over the world internationally we are using the nowadays with a black color trefoil sign with yellow background. So coming to the features of this sign is it is a trefoil sign, and it is having a three flan like blades, and it is having the circle, inner circle is having one radius of 1.5. So this is a radius of 1.5 inner one, and the external radius is 5r, and each blade is separated from each other with a 60 degree. So those whoever is making this sign in your department, please do follow that it is having a 60-degree apart distance from one blade to another. Next thing is this is the caution sign, which one you can see in almost the radiation areas. In the entry door, this is a main door, and this sign will indicate that this area is having ionizing radiation, so you should be cautious while entering this area. And for publics also, whenever you see this sign, be careful that you don't enter this area without any prior permission. So whenever necessary, do enter in this area, otherwise don't enter this area. Means whenever you have any patients to undergo any radiological procedure, do enter this area, otherwise unnecessary don't roam in this area wherever you are seeing this sign. Next thing is this is a x-ray warning on sign. On means whenever you are seeing this sign and it is blinking, you may see this sign mainly near the x-ray doors and CT scan scanner room door. Wherever you see this light is blinking, that means your x-rays are on. So please at least don't send near this door areas, because radiation may come out and affect you. So this is a sign, control area sign, and we instruct every radiographers to have a basic training on this sign, so that they won't enter this area when the procedures are going on. And for publics also, whenever you are seeing this area or this kind of red light, please don't do stand and wait for your patient whenever you are doing एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर्स. तो ये जो साइन है ये एक्सरे का ऑन साइन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन है आप लोगों के लिए जो व्यूअर्स हैं, जो नॉर्मल पब्लिक्स हैं. तो अब कभी भी ये रेड लाइट जहाँ पर लगा के है और ऐसी डोर जहाँ पर आपको ऐसे सिंबल्स देखेगा, मतलब ये जो एरिया है वो है स्कैनिंग एरिया. इसके अंदर एक्सरे या सिटी मशीन ऑपरेट हो रहा है, पेशेंट स्कैनिंग होता है. तो आप अगर इसी डोर्स के पास सामने रहोगे तो आपको रेडिएशन लग सकता है, जो सेकेंडरी रेडिएशन होता है. तो प्लीज़ कभी भी ये दरवाज़ा के पास मत खड़े रहिए. और ये जो साइन है ये हमारा डिपार्टमेंटल एंट्री डोर का साइन है, मेन डोर का. तो अगर आपको ये डिपार्टमेंट साइन देखोगे तो प्लीज़ आप ये एश्योर करना कि इस जगह में सिर्फ आपको जब भी ज़रूरत होगा तभी आना, नहीं तो मत आना. नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी वार्निंग साइन. तो काफ़ी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होता है वो एंट्री कर सकते हैं, बट जो हमारा मेन डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी का, तो आपको ये डिपार्टमेंट में ध्यान रखना है जहाँ पर आपको ये साइंस रहेगा, आयोनाइजेशन साइन रहेगा, तो आप प्लीज़ इस एरिया में प्रेग्नेंट
प्रेगनेंसी की स्टेज में मत एंटर करना, क्योंकि आपके अंदर जो बेबी है उसको भी रेडिएशन लग सकता है, और आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा रेडिएशन जैसे हार्मफुल डिजीज़ का सामना हो सकता है, जैसे कि उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, कभी कभी आईयूडी भी हो सकता है, इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकता है। सो प्लीज़ जब भी आपको ये साइन दिखोगे तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ आप एक बार आपके टेक्नीशियन या नर्स को इन्फॉर्म कर लोगे। और या तो अगर आपने काफ़ी दिनों से पीरियड मिस किया है, जो मैटरनिटी स्टेज में है और जो मैरिड वुमेंस है, तो प्लीज़ ये साइन फॉलो करना। और प्लीज़ अगर आप प्रेग्नेंट हो तो रेडिएशन एरिया में, जैसे एक्स-रे और सीटी का एरिया है वो काफ़ी हार्मफुल एरियाज होता है, तो प्लीज़ वहाँ पर मत वेट कीजिए या मत एंट्री कीजिए। So this is a pregnancy warning sign. Basically, we place on the doors of X-ray and CT scan department wherever ionization radiations are there, just to alert the pregnant ladies not to enter in this area because it may be harmful for the fetus inside the womb. So please do follow this sign. If you are pregnant, please don't enter the radiation area. अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ 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 इस एरिया में मत एंट्री कीजिए जहां आपको ऐसे साइंस दिखे देगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो एक बार इन्फॉर्म कर लेना एक्सरे या सीटी स्कैन प्रोसीजर करने से पहले, ताकि आप आपके अंदर जो बेबी है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। इवन फॉर फीमेल स्टाफ्स ऑल्सो इज एन वार्निंग फॉर यू दैट whenever you are pregnant, do inform your RSO and all the departmental heads and don't be in the ionizing area because this area is very much important. जो लेडीज वर्किंग फील्ड में है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या हो चांसेस है तो प्लीज़ आप एक बार RSO या आपके जो डिपार्टमेंटल हेड स्टाफ्स होते हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए। हो सके तो आपका डिपार्टमेंट का जो पोस्टिंग्स होता है वो MRI या अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में फिक्स हो जाएगा, और आपको पूरी तरह इसी डिपार्टमेंट से जहाँ एक्सरे या सिटी स्कैन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसी एरिया से आपको तुरंत ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। Next is, this is the play cards which we place in the departmental doors mainly to indicate that ionization radiation is there and you should not entry इन दिस एरिया विदाउट एनी प्रायर परमिशन। सो ये जो साइन है वो है प्ले कार्ड साइन। तो ये साइन बेसिकली हम डोर्स में लगाते हैं। आप एक्सरे के डोर्स में देखोगे तो इसका मतलब है कि जहाँ आप ये साइन देखोगे तो प्लीज़ आप इसके अंदर मत जाइए, क्योंकि उसके एरिया में बहुत ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और आपको प्रिकॉशंस भी रहना होगा। विदाउट प्रायर परमिशन आपको इस एरिया के अंदर, इस रूम के अंदर नहीं जाना है। ठीक है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। दिस इज the sign which is universal sign of radiation, that is IAE, International Atomic Energy Agency. International Atomic Energy Agency, it is given a sign. This is the most important hazardous sign. इसका मतलब है कि ये जो साइन होता है वो ट्राइफल होता है, उसका बैकग्राउंड रेड होता है, और रेड का मतलब क्या है? डेंजर है। आपको यहाँ पर रेज दिखेगा तो मतलब ये जो रेज है इसका मतलब है रेडिएशन है, और ये जो रेडिएशन का रेज होता है वो डेंजर है, तो इसलिए डेंजर स्कल बोन का साइन है। और ये एक दिखाई दे रहा है कि बंदा भाग गया है, तो आपको ये जो रेडिएशन है वो काफ़ी डेंजर है, और अगर आप दिखेगा तो इस तुरंत ही इस जगह को एग्जिट करोगे। Okay, so this is a trifoil sign, IAE sign, which is given by sorry, it's not a it's a triangular sign and it's a dangerous sign given by our IAE to prevent the harmful effects of radiation. This sign is actually a triangular shape with a red background. It has radiation sign which indicates that rays are very harmful, and this is mainly placed in high level radiation dose areas. This skull bone indicates that it is very dangerous, and whenever you are seeing this person indicates that whenever you see this sign please do run away. और ये जो साइन है बेसिकली हमारे जो एक्सरे ट्यूब होता है उसके अंदर रहता है, जो ग्लास एनवेलप है वो अगर टूट गया तो क्या होगा? रेडिएशन ज़्यादा ही निकल जाएगा। तो दिस साइन इज मेनली प्लेस्ड inside the X-ray tube where the glass envelope is placed, and this is placed inside the radiation shielding materials. जहाँ पर आपका रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स होगा, पैकिंग मटेरियल्स होगा, उसके अंदर रहता है जो हमारा रेडियो आइसोटोप्स वगैरह होता है, इट इज प्लेस्ड इन दैट एरिया. सो वेन एवर यू आर सीइंग दिस टाइप ऑफ रेड कलर सिंबल्स, दैट मीन्स रेडिएशन हैज लीक्ड एंड यू शुड immediately vacate this area and run away from this area, otherwise you will be affected by the harmful rays. So this sign plays a very important role, and काफ़ी इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये साइन कहाँ दिखेगा. सो डोंट फॉरगेट, इट इज सीन इनसाइड द एक्सरे ट्यूब. जो एक्सरे ट्यूब होते हैं उसके अंदर रहता है, ग्लास मटेरियल के पास जो ग्लास एनवेलप होता है, और जहाँ आपके रेडिएशन पैकिंग मटेरियल होता है, जो आइसोटोप्स वगैरह आता है पैकिंग होके उसके अंदर रहेगा. जहाँ पर आइसोटोप का डब्बा होता है, पैकिंग बॉटल होता है, वहाँ रहेगा. अदर देन दैट यू विल नॉट सी. सो मतलब ये साइन दिखेगा तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, आपको तुरंत ही ये एरिया वैकेंट करना होगा. नेक्स्ट ये दूसरा एक प्ले कार्ड है जो हमारा पैकिंग मटेरियल में लगा के होता है कि
what is the type of packing you are making it. So if it is a type 1 package, you will see this kind of sign. If it is type 2 package, means little medium size package, you will see this sign. And if it is type 3, means huge bulk of radiation isotopes are coming, various types of pharmaceuticals are coming, radio pharmaceuticals are coming, like technetium 99, सब जो भी पैकिंग मटेरियल्स होता है, बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट यूज दिस वन. सो दिस इज फॉर बल्क, मतलब हैवी मटेरियल्स आ रहा है, यहाँ पर लाइट मटेरियल्स आ रहा है, यहाँ पर मीडियम साइज की पैकिंग हो रहा है. सो ये है हमारा रेडिएशन पैकिंग साइन, जिसको हम बोलते हैं ट्रैम कार्ड, TREM, ट्रैम कार्ड. तो दिस साइंस आर मेनली यूजफुल फॉर पैकिंग पर्पज. वन मोर थिंग, आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ये साइन दिखाई देगा तो प्लीज़ तुरंत ही आप एक बार जीडी एंट्री कीजिए, नियर बाई पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कीजिए, और एक बार हमारे जो गवर्निंग बॉडीज़ है, ARB फॉर इंडिया, बार्क, सो ऐसे ही आप लोग गवर्निंग बॉडीज़ को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि तुरंत ही एक्शन लिया जाए. नेक्स्ट इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एरिया. तो जहाँ पर रेडिएशन का हार्मफुल इतना नहीं है, जहाँ वो लोग RF पल्स या अल्ट्रासाउंड जैसे वेव यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द बॉडी, सो यू विल सी दिस साइन. सो मतलब ये साइन दिखेगा तो ये एरिया आपके लिए सेफ है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, बट आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ही चाहिए. तो मोस्टली कमिंग टू द नॉन आयनाइजिंग एरियाज आर आवर अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट एंड आवर MRI डिपार्टमेंट. तो MRI डिपार्टमेंट में आपको काफ़ी ऐसा साइन दिखेगा, Zone 1, Zone 2, Zone 3 और Zone 4. Zone 1 मतलब जो रिसेप्शन एरिया है, वहाँ पर पेशेंट पार्टी सब कुछ आ सकता है. Zone 2 जो होता है वो पेशेंट स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि हमको पता है कि MRI में एक ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपेंस इज इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट व्हाट एवर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वी हैव. फेरोमैग्नेटिक जैसे कि आयरन, मेटल्स, जो भी चीज़ होगा वो खींचेगा अपने की तरफ. तो पेशेंट के अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या नहीं है, उसका स्क्रीनिंग जो होता है वो होता है Zone 2 पे. नेक्स्ट होता है Zone 3, जो हमारा मेनली कंट्रोल पैनल एरिया होता है, जहाँ पर पेशेंट को स्क्रीनिंग होता है या पेशेंट वेट करता है नेक्स्ट फॉर द प्रोसीजर. एंड Zone 3 पे all the completion of the procedure checking is done and the patient is ready for going for the MRI area. और Zone 4 जो है वो डेंजर एरिया होता है, मेनली आवर MRI फील्ड होता है, वहाँ पर तो कोई भी पर्सन मेटल इम्प्लांट्स लेके एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. सो Zone 4 is a danger field in our MRI zone, that is mainly the scanning room area. So you should be totally free from ferromagnetic substance before entering this area. If you don't follow this, we will show you what happens next. Next thing is, so you can see this type of warning signs also. So we indicate that MRI is having a strong magnetic field, so you should have some precautions, like if any patients are with pacemakers, so you should not enter and your procedure is strictly prohibited. If you have any aneurysm clips, like cochlear implants and all, if they are made up of metal, you cannot have an entry in the magnetic field. तो तुरंत ही आपको आपके जो स्टाफ है, टेक्नीशियन है, वहाँ पर तुरंत ही आप इन्फॉर्म करोगे कि मेरे अंदर पेसमेकर है, मेरे अंदर कॉकलिया इम्प्लांट्स है, ताकि ये क्या होता है कि ये जो चीज़ें होते हैं वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो तुरंत ही आप वो चीज़ें उनका जो हाई फील्ड के साथ कॉन्टैक्ट में आने से दे स्टॉप वर्किंग, तो आगे चल के ये काम करना बंद कर देगा. तो अगर पेसमेकर बंद हो गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली द पर्सन विल डाई. एंड पेसमेकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन कॉन्ट्राइंडिकेशन. अगर किसी के पास पेसमेकर है तो आप कभी भी MRI प्रोसीजर नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट थिंग इज आवर, जैसे कि बहुत सारे पाँव में इम्प्लांट वगैरह लगा के होते हैं, मेटल रॉड्स होते हैं, तो अगर ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है तो आप परमिशन है. अगर फेरोमैग्नेटिक का होता है तो आप उसका MRI करने से पहले एक बार इन्फॉर्म कर देना कि मेरे पास इम्प्लांट्स है. दे विल चेक वेदर दैट इज स्टेनलेस स्टील और मेटल आइटम्स. अगर मेटल होगा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर भी एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल इफेक्ट, मतलब बहुत ज़ोर से आपको खींच लेगा. साथ ही साथ जैसे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि आप मानो कि इफ़ यू हैव सीजर्स, वॉच, ATM कार्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्क्रू ड्राइवर्स, पेशेंट काउच, एवरीथिंग जहाँ जहाँ मेटल्स होगा, प्लीज़ गन्स, एनीथिंग, प्लीज़ डोंट अलाउ देम टू एंट्री इन द MRI साइट. और एक बात हाथ में रखना है टेक्नीशियंस को, जब भी आप MRI करोगे तो आप एक बार नोटिस कर लेंगे जो डोर होता है वो प्रॉपर्ली लॉक होते हैं. नहीं तो क्या होता है, एक्सटर्नल RF पल्स आके मिक्स हो जाता है इंटरनल RF पल्स के साथ, और एक जेब्रा क्रॉसिंग जैसे चेन जो होता है ना, जिप की जैसे एक आर्टिफैक्ट आ जाता है. तो प्लीज़ हमारे जो नॉर्मल जो हमारा पब्लिक्स है उनके लिए, पेशेंट्स पार्टीज़ के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके पास पेसमेकर है,
वॉच है, एटीएम कार्ड्स, कोई भी मोबाइल फ़ोन्स, जो भी चीज़ें होता है फेरो मतलब मैग्नेटाइज आरएफ पल्स की चीज़ें होता है वो आप प्लीज़ जो हमारा ज़ोन 3 है वहाँ पर रख के जाइए, 4 ज़ोन पे मत लेके जाइए। तो अगर आप एटीएम कार्ड लेके गया या घड़ी लेके गया, तो जब दोबारा आप निकलोगे उस जगह से देखोगे कि ये सब काम करना बंद कर दिया। सो मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, वॉच, पेस मेकर, मेटल इम्प्लांट्स, metal items, guns, private bed, oxygen cylinder, wheel station, everything you have to monitor before entering the MRI zone area. If you don't do, it is very much harmful for the patient also. So see, this is what happened is the technician and the ward boy has not scanned the properly, and this type of damages can happen, and it's very risk में मतलब पेशेंट की जान भी जा सकता है अगर आप ऐसे प्रिकॉशंस नहीं लोगे। देखिए पूरा प्रेशर इंजेक्टर वगैरह सब कुछ खींच लिया है। And last and final addition sign and symbol is the biohazard sign. So basically nuclear medicine department where we are using radioisotopes, nuclear medicine, means pharmaceuticals, there we are using the source. तो आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो एक्सेल का डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भी ये साइन होता है। तो प्लीज़ whenever you are discarding any radiation isotope items or radiation wastes, biological wastes, please do discard them in a black color box having this biohazard sign। जो हमारा डस्टबिन होगा, बायोमेडिकल वेस्ट का डस्टबिन होगा, वो ब्लैक कलर का होगा और उसमें ऐसे बायोहैज़र्ड का साइन लगा के होगा। जितने भी एक्सरे का वेस्ट हो सकता है, न्यूक्लियर मेडिसिन का जो रेडियो आइसोटोप का बॉटल्स हो सकता है, तो सब कुछ हम यहाँ पर डैम करेंगे और ये एज पर ARB गाइडलाइंस उनके एक्टिविटी के हिसाब से वो डिस्कार्ड हो जाएगा। So I hope you all like this, and this is a very important topic for the day today, and do share it as much as possible. Please subscribe our channel for more videos, because it's not possible for us to share with everyone. So if once you subscribe, you will get all the notifications, and please press on the notification button so that whatever any updates we have for our radiology, we will share it very soon. I hope you like it. So please forward it as much as possible. Thank you so much, and this is Sarvai here.